हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लास 6 सिलेबस। चैप्टर 6 है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया। हमारे पुराने चैप्टर 1 2 3 4 5 हो चुके हैं कवर। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी थिंकिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया कंप्यूटेशनल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट स्क्वायर्स व्हिच आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स as shown in the image below. Which of the following options correctly represents the relation between the division? And here we have the four options. पहले फोर ऑप्शंस को देखे बिना पहले हम फिगर को डिकोड करते हैं। इस फिगर में ये स्क्वायर है जिसका साइड है 4, तो इसका एरिया कितना हुआ, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो ईच पार्ट विल बी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ईच पार्ट विल बी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ओके। और सिमिलरली अगर हम सेकंड फिगर को देखें तो ये भी एक एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 4 इसकी साइड है, तो हाफ of the diagonal triangle will be half of 16 triangle will be 8 centimeter square। और उस 8 को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो दिस विल आल्सो बी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस आल्सो बी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये फोर ऑप्शंस ढूंढने हैं कि ये कौन से करेक्ट है। ऑप्शन ए में ब्लू पोर्शन इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, green is also 4 centimeter square and triangle is also 4 centimeter square. So is it true 4 plus 4 is lesser than 4? No, this is false. Coming on to B, purple portion is 4, yellow portion is 4 and blue portion is also 4 and this triangle is of 8 centimeters. Is it true 4 plus 4 plus 4? Again it is a false situation. Coming on to third part, 4 again plus 4 plus again 4. This triangle is of 8 and this triangle is of 4. This is 12 and this will also be 12. That means this situation is a true situation. फोर्थ सिचुएशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। वन ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मींस इट्स अगेन अ फॉल्स सिचुएशन। तो पहले हमने अपने ट्रायंगल्स को डिकोड करके एरिया निकाल लिया, जिससे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के एरिया निकालना इजी रहा। So in this option, C option is correct. I hope this is clear. Okay, coming on to the second question. The perimeter of a square is 16 centimeter. The square is cut along its diagonal to form two identical triangles. And which of the following statements is definitely false based on the above information? And here's the diagram. The diagram is represented in the form of a square, and the square is divided diagonally into two triangles. Okay, we have to see which option is definitely false, cannot be true anytime. Two sides of the triangle meet each other perpendicularly. If we see the sides of the square, they always meet perpendicularly, so this will always be true. The length of at least one side of each triangle is 4. So each triangle, the length of one side is 4. At least one, we have at least two sides we have with the sides as 4. So one side is 4, the two sides are 4 and the hypotenuse will be different as it will be longer than 4. So this will also be true. The combined area of the triangle is 16 centimeter square. So area of square, it is 4 into 4, that is 16 centimeters square. So when you combine the two triangles, it will become a square, and when it will become a square, the area of square will be 16 centimeters square. That means this is also true. The fourth option says the combined perimeter of the triangle is 16. Now this cannot be true. Reason being, earlier we had 1 2 3 4 sides. Okay, now we have one addition to the sides, 1 2 3 4 5 6. So we have 6 sides now. Now if we have to find the perimeter of the two triangles, the first triangle has the perimeter 12, the second triangle has the perimeter 12, and the combined perimeter of the triangles will be 24, not 16. So that means the D option is false. I hope this is clear. चलिए थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ लार्जर ब्लॉक इज फॉर्म्ड यूजिंग 4 स्मॉल क्यूब्स, 2 ग्रे क्यूब्स
and 2 white cubes as shown below. How many faces of the larger block have equal gray and white areas? We have 4 options, 4, 5, 3, 2. क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जर ब्लॉक बनाया गया है 4 क्यूब्स, छोटे क्यूब्स, इसमें 2 ग्रे हैं और 2 व्हाइट। कौन सा फेसेस लाइक आपने पढ़ा हुआ टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, कौन से फेस पे हमें इक्वल ग्रे और व्हाइट एरियाज मिलेंगे? तो पहले हम इसके इक्वल व्यूज देख लेते हैं। पहले तो सारे व्यूज देखते हैं, ऊपर से कैसे दिखता है, नीचे से कैसे दिखता है, कैसा फेस दिखता है। लार्जर क्यूब हैज हाउ मेनी फेसेस? फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो ऑल इन ऑल इट हैज 6 फेसेस। तो हमें पहले 6 व्यूज पता होने चाहिए कि 6 व्यू कैसे हैं, उसमें से हम डिसाइड करेंगे इक्वल ग्रेज और इक्वल व्हाइट्स कहाँ दिख रहे हैं। तो ये रहे हमारे व्यूज। इस व्यू में देखा जाए तो टॉप व्यू को अगर आप ध्यान से देखो, टॉप व्यू के अंदर 2 व्हाइट है, ग्रे है ही नहीं। बॉटम में देखोगे तो 2 ग्रे हैं, व्हाइट है ही नहीं, तो ये तो कंसिडर ही नहीं होगा। अब फ्रंट से देखोगे, सामने से आपको 2 व्हाइट दिख रहे हैं, 2 ग्रे, ये रहे 2 व्हाइट, 2 ग्रे। यू कैन कंसिडर हो सकता है इक्वल ग्रेज एंड इक्वल व्हाइट्स। अब यही पीछे भी सीन होगा, 2 ग्रे होंगे, 2 व्हाइट होंगे, तो बैक को भी कंसिडर किया जाएगा। साइड लुक देखी जाए तो एक ऊपर व्हाइट है, एक नीचे ग्रे है, इक्वल है, ये भी देखा जाएगा। और राइट साइड से जो लेफ्ट है वही राइट है, उसमें भी देखा जाए तो एक व्हाइट होगा, एक ग्रे होगा, तो इसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो टोटल इन ऑल कितने ऑप्शंस हमारे करेक्ट हुए? 4। तो 4 फेसेस जो हैं जहाँ पे हमारे इक्वल ग्रेज और व्हाइट नजर आएंगे। सिर्फ टॉप पे देख रहे हो आप, सिर्फ व्हाइट्स नजर आ रहे हैं, या बॉटम्स में देखोगे सिर्फ ग्रे नजर आ रहे हैं, वो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। दैट मीन्स आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। हाउ मेनी टाइम्स शुड द गिवन पेपर शीट बी फोल्डेड सो इन हाफ so that the perimeter of the new shape is 16 सेंटीमीटर? पहले तो देखते हैं कि पेरीमीटर है कितना। ऑप्शंस है हमारे पास 0, 1, 2, 3। अभी तो हमारे पास है 8 एंड 4 लेंथ और ब्रेड, तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज 2 इंटू 12, 24। ठीक है, हमें न्यू पेरीमीटर चाहिए 16। अगर मैं इस शेप को यहाँ से फोल्ड कर देती हाफ, तो ये बन जाता 4, और ये भी 4, और ये भी 4। ठीक है, तो उस केस में स्क्वायर बन जाता। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, विच इज 4 इंटू 4, दैट इज 60। तो एक ही फोल्ड से काम हो गया हमारा, तक हमारा पेरीमीटर 16 आ गया। दैट मीन्स हमने एक शीट को अपना फोल्ड करा हाफ में, स्क्वायर बना 4 by 4 का, जिसका पेरीमीटर हो गया 16। आई होप दिस इज क्लियर। सो कितने हमने, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव फोल्ड? वी हैव फोल्डेड ओनली 1 टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से। ग्रिड एम इज मेड यूजिंग अ रेगुलर हेक्सागन्स like shape A as shown. Additional copies of shape A may be attached only along the outer sides of grid M. हम A shapes जैसी और shapes इसमें attach कर सकते हैं, and each added shape must share at least one full side with the existing grid. और जब हम shape लगाएंगे, उसकी एक minimum side तो उसके साथ attach होनी चाहिए। The shape must be added such that the total perimeter of the grid remains unchanged. मतलब हम अगर एक शेप भी ऐड करते हैं तो पेरीमीटर पे कोई इफेक्ट ना हो। व्हाट इज पेरीमीटर? इज द आउटर बाउंड्री। सो व्हाट इज द मैक्सिमम शेप नंबर ऑफ शेप ए पीसेस दैट कैन बी एडेड? तो हम ए जैसे कितने पीसेस लगा सकते हैं? एंड वी हैव दीज 4 ऑप्शंस। अगर आप देखो तो अगर पेरीमीटर जो होता है वो क्यों होता है? हमारी आउटर बाउंड्री। हमारी आउटर बाउंड्री मींस दिस पोर्शन, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये हमारी आउटर बाउंड्री है। इसका इनर वाली साइड हेक्सागन से कोई लेना देना नहीं है। ये जो आउटर बाउंड्री मैंने हाईलाइट कर रही हूँ ग्रीन कलर से, ये आपका पेरीमीटर होता है, सम ऑफ द टोटल बाउंड्री। ठीक है, अब इसी के साथ हमें अटैच करना है एक शेप ए। जितने भी शेप ए हम ऐड कर सकते हैं, बट हाँ पेरीमीटर पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक शेप ए ऐड कर दूं ऐसे, तो अब हमारा पेरीमीटर कहाँ से काउंट होगा? यहाँ से जो जा रहा था वो 1, 2, 3 यहाँ ऐड हो गया। पहले यहाँ पे 1, 2, 3 था, अब मैंने 1, 2, अब ये वाला तो काउंट नहीं होगा। तो अब अगर मुझे पेरीमीटर ऐड करना हुआ, तो अब मुझे इस पेरीमीटर के लिए ये बाउंड्री ऐड करनी होगी। ये वाला जो पोर्शन है जो मैं ग्रीन में हाईलाइट, ये वाला पोर्शन आपका येलो ग्रीन, ये ऐड नहीं होगा। तो मतलब जैसे ही मैंने इधर ये 3 साइड्स यहाँ पे एक शेप ए ऐड करी,
ये 3 कंसिडर नहीं होंगे, ये वाले कंसिडर होंगे। सिमिलरली एक यहाँ पे ये 1 और 2 है, अगर मैंने 1 और 2 के साथ ऐड करा तो क्या ये 1 और 2 के बदले मुझे 1 2 3 4 एक्स्ट्रा साइड्स मिलेगी? नहीं, तो ये वाला भी हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर इस गैप में मैंने 1 2 3 के साथ एक 1 2 3 ये यहाँ पे एक शेप फिक्स कर दी है ऐसे, तो इस 3 के बदले मुझे नीचे वाली 3 मिल गई, तो यस ये वाला भी वर्क करेगा, ये वाला भी वर्क करेगा। फिर अगर 2 के साथ ज्वाइन करूंगी बाकी 4 साइड्स, तो 2 के बदले 4 साइड्स मिल रही हैं, नहीं चाहिए। तो हमारा हम यही देख रहे हैं कि 3 के बदले अगर 3 साइड्स ऐड हो जाएं, ये 3 कंसिडर ना हो, ये वाली 3 कंसिडर हो जाएं, तो पेरीमीटर रिमेन्स सेम। तो 3 साइड्स वाली जगह पे अगर हम हेक्सागन को फिक्स कर रहे हैं तो हमारा पेरीमीटर सेम आ रहा है। तो क्या ये फिगर ऐसी तो नहीं है? ऐसी ही है ना। इसमें आप देखो तो मैंने इस 1 2 3 के बदले इधर 1 2 3 ऐड कर दिया, अब ये अंदर वाला काउंट नहीं होगा, बाहर वाला काउंट होगा। नाउ दिस 3 विल बी काउंटेड, सिमिलरली these 3 will be counted, similarly these 3 will be counted, similarly these 3 will be counted। तो कितने हेक्सागन आप ऐड कर सकते हो अपनी फिगर में? 4। यहाँ क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि 2 साइड्स के बदले मुझे 4 और साइड्स देनी पड़ेगी। 3 के बदले 3 रिप्लेस हुआ, पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आया। 2 के बदले 4 हुआ, पेरीमीटर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। So let's start with the sixth question. All the squares and the rectangles given below are to be used to form an arrangement. The arrangement shown in these options will give the highest perimeter. ये हमारे पास 4 शेप्स हैं और ये इसकी 4 अरेंजमेंट्स हैं। हमें देखना है कि कौन सी अरेंजमेंट में सबसे हाईएस्ट पेरीमीटर आएगा। अगेन पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होती है? सम ऑफ द आउटर बाउंड्रीज। ए बी सी डी हमारे पास 4 शेप्स हैं। ठीक है, लॉजिकली देखें या तो हम सबका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, ए वाली साइड्स को लिख के 4 एंड 4, देन ये वाली साइड तो काउंट नहीं होगी, देन सी की पेरीमीटर साइड्स लिख सकते हैं, सी की भी ऑल साइड्स 4 है तो 4 और 4, बट ये दोनों काउंट नहीं होगी, सी की एक साइड काउंट नहीं हुई। फिर बी की साइड्स देख सकते हैं, बी में ये है शॉर्टर साइड इज 3 3, ये वाली साइड फिर काउंट नहीं होगी। और डी में भी देखा जाए तो शॉर्टर साइड इज 3 एंड 3, ये साइड काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो पेरीमीटर के अंदर मैं 4 साइड्स ये काउंट होगी, सॉरी दिस इज आउटर वन, तो दिस ये वाली काउंट होगी, इसको सॉरी ये हम काउंट कर लेंगे। तो देखा जाए तो 1 2 3 3 साइड्स तो हमने काउंट ही नहीं करी, 3 साइड्स तो हमने काउंट ही नहीं करी, बाकी हम ऐड करके पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर हम बी फिगर की बात करें, इधर भी हम आउटर फिगर की ही बात करेंगे, ये साइड ऐड करेंगे, ये बाउंड्री चलती रहेगी, ये सब चलता रहेगा, आउटर बाउंड्रीज आती रहेंगी, बट इन द मीन वाइल हम ये रेड वाली साइड काउंट नहीं करेंगे। ये हमारा मिस्ड पोर्शन है, जो हमारे 4 रेक्टेंगल्स में से 3 साइड्स हम काउंट नहीं करेंगे। यही फिर से हम सी फिगर की बात करें तो ये साइड काउंट होगी, ये साइड काउंट होगी, ये आउटर काउंट, आउटर की ही बात कर रहे हैं, आउटर में ही काउंटिंग होनी है पेरीमीटर की डेफिनेशन। और क्या काउंट नहीं होना? 1 2 3, तो अप्रोक्सीमेटली 3 साइड काउंट नहीं होनी, इधर भी 3 साइड काउंट नहीं होनी, अप्रोक्सीमेटली 3 साइड इधर भी काउंट नहीं होनी। फर्स्ट फिगर में भी देखा 3 साइड काउंट नहीं होनी। फोर्थ फिगर की बात करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये भी काउंट होगा, राइट। 1 2 3 4, ये भी काउंट होगा, 1 2 3 4। तो अल्टीमेटली कितनी साइड्स काउंट नहीं होनी? अब देखा जाए तो यहाँ से आपने पेरीमीटर काउंट करना शुरू करा, ये सब काउंट होता जा रहा है, काउंट होता जा रहा है। क्या काउंट नहीं हो रहा? सिर्फ एक साइड काउंट नहीं हो रही, बाकी सारी साइड्स एबीसीडी में से कहीं ना कहीं आ ही जा रही हैं। तो मिनिमम हमने सिर्फ एक ही साइड को तो काउंट नहीं करा, बी की, बाकी सारी साइड्स को काउंट करा, जहाँ की ए फिगर देखो या बी फिगर देखो या सी फिगर देखो, 3 3 साइड्स को हम पेरीमीटर में काउंट ही नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली लॉजिकली देखा जाए तो हाईएस्ट पेरीमीटर किस में निकलने के चांसेस हैं? डी में निकलने के चांसेस हैं, क्योंकि डी में सिर्फ सारी साइड्स काउंट होनी है एबीसीडी की, एक्सेप्ट वन साइड। बाकी ए बी सी फिगर्स में थोड़ा थोड़ा हर फिगर का पोर्शन काउंट नहीं होगा, जो कि पेरीमीटर को लेस कर देगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको ये आपको डायरेक्टली निकालना भी हो, जैसे जैसे मैंने ये डिजिट्स लिखे हैं, आप ऐसे डिजिट्स लिख के प्लस करके पेरीमीटर निकाल के देन तब भी कंपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन से। फिगर ए बी सी आर ऑल ऑफ द सेम डायमेंशंस,
Which of the following colored block has the largest area when we have these four options? Red, yellow, green, or all of them have an equal area? So अगर dimension same है तो area of A will be equal to area of B will be area of equal to C. तीनों का area तो बराबर होगा, dimension same तो area भी same. अब yellow portion जो है वो है 1/4 of A, येलो वाला, ठीक है. ग्रीन है हमारा अगेन 1/4, है ना, 1/4 ऑफ बी. तो मतलब ए और बी का तो एरिया सेम ही निकलने वाला है, क्योंकि वन जो दोनों का एरिया सेम है तो येलो और ग्रीन तो सेम है. और सी जो है, रेड जो है, वो 1/3 ऑफ सी है. ठीक है, जो रेड कलर है वो सी पोर्शन का 1/3 है. तो अब कंपैरिजन है किसके बीच में? 1/4, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/3. कंपैरिजन एक्चुअली है बिटवीन 1/4 एंड 1/3, विच इज बिगर एंड विच इज स्मॉलर. तो ये देखा जाए 1/3 और 1/4 में विच इज बिगर. the smaller when the unit fractions are compared, जब दोनों के न्यूमरेटर सेम होते हैं, smaller the denominator, bigger the fraction. That means 1/3 is bigger than 1/4. That means which figure has the largest area? C, that is A red portion has the largest area. A और B में तो कंपैरिजन ही नहीं, क्योंकि दोनों 1/4 है और दोनों का एरिया सेम होगा. और A और B को अगर C से कंपेयर करेंगे, 1/4 को अगर 1/3 से कंपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली 1/3 will be bigger than 1/4. I hope this is clear. Let's start with the eighth question. A square frame has a side length of 16 centimeter. Inside it, four square shaped photographs of side 4 centimeter are to be placed such that each photograph touches the corner of at least one other photograph. No two photographs share a common side. The photographs do not overlap. What is the largest square shaped empty space that can be seen inside the frame? We have these four options. Let's understand this question diagrammatically. We have two kinds of arrangements. दो तरीके के arrangements हो सकते हैं इसके अंदर. एक तो हम photos को corner पे ही मिलना है. We cannot see the two photos. As per the first point, each photograph touches the corner of at least one photograph. And sides पे overlap नहीं होना चाहिए. So the corners are only overlapping, not the sides. तो एक ये placement है, ये red photographs हमने लगा दी. या एक ये अरेंजमेंट है कि इधर कॉर्नर लगा दिया, इधर कॉर्नर लगा दिया, 4 फोटोग्राफ्स ऐसे लगा दी. दोनों सिनेरियोज में हमारे पास ये वाला एरिया एम्प्टी स्पेस है और एक ये वाला एरिया एम्प्टी स्पेस है. अब एम्प्टी स्पेस हमारी जो बची है, हम पूरी साइड 16 सेंटीमीटर की थी, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तो निकल गया 8, तो लेफ्ट ओवर कितना बचा? 8 सेंटीमीटर. सिमिलरली ऐसे ही 4 और 4 8 निकल गया, तो साइड कितनी बची? 8. तो ये एक स्क्वायर बच गया इधर 8/8 का, ये एक स्क्वायर बच गया 8/8 का. तो हमारे इस स्क्वायर का एरिया कितना हुआ? 8 मल्टीप्लाई बाई 8, जो कि एम्प्टी स्पेस की मैं बात कर रही हूँ, which is 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. अरेंजमेंट 1. अगर हम अरेंजमेंट 2 में भी ऐसे फोटोग्राफ्स लगाएं तो भी ये 8 सेंटीमीटर टोटल, तो ये 8 बच गया. ऐसे भी 4 और 4 की दो फोटोग्राफ लगाई, 8 सेंटीमीटर निकल गया, तो ये 8/8 अगेन, इसका एरिया भी 64. तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने साइज के हम स्क्वायर निकाल सकते हैं? मैक्सिमम लार्जेस्ट स्क्वायर शेप एम्प्टी स्पेस कौन से हम निकाल सकते हैं? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 9th क्वेश्चन से. द ग्रिड शोज अ पीस ऑफ लैंड divided among 3 houses using different colors including the area occupied by each house. The land is then redistributed so that all the 3 houses receive the equal areas. Which of the options is not the exact area of land gained or lost by any of the house after this redistribution? Redistribution से पहले distribution की बात करते हैं. तो ग्रीन को कितना लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ? पहले तो 1 स्क्वायर हैज 30/30 का एरिया, 1 स्क्वायर हैज 30/30, और ऐसे कितने स्क्वायर्स उसको मिले हैं? 1 2 3 6 9 12 4 16 एंड 4 20. तो 30/30 के 20 उसको मिले. दैट मींस 18,000 मीटर स्क्वायर का उसको लैंड मिला है. बात करते हैं पिंक की. पिंक को कितने? अब हमारा 900 स्क्वायर मीटर का एक लैंड है, एक स्क्वायर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13, 13 and 8 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21.
21 स्क्वायर इसको मिले हैं, दैट मीन्स 18,200 मीटर स्क्वायर का लैंड, 18,900 मीटर स्क्वायर का लैंड हमें पिंक को दिया है। एंड बात करते हैं ब्लू की। 1 2 3 4 5 10 15 20 23, तो 900 के 23 स्क्वायर, 900 लेंथ के 23 स्क्वायर्स, 9 3 27, 9 2 18, 20,700 मीटर स्क्वायर ब्लू को मिला है। सबको अनइक्वल मिला है, बट देन दे से कि रीडिस्ट्रीब्यूट करके इक्वली डिवाइड करना है। रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टोटल स्क्वायर्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 64 स्क्वायर्स है। ठीक है, हमारे पास 64 स्क्वायर्स हैं, हर स्क्वायर का एरिया है 900 मीटर स्क्वायर। ओके, जो कि अब ये तीनों में इक्वली डिवाइड होना है, ग्रीन ब्लू और पिंक में। तो चलो तीनों में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो हर पर्सन को कितना मिला, 3 4 12, 3 19,000, 3 4 12 एंड 3 6 19,200 मीटर स्क्वायर। अब तीनों को इतना मिलना चाहिए। इसको मिला हुआ है 18,000, तो दैट मीन्स इसको 1200 अभी और मिलेगा, तभी इसके पास 19,200 होगा। I'll write with some other color so that you find it separately। तो 1200 हमने इसको सेपरेट और दिया। इसके पास 18,900 है, इसको सिर्फ प्लस 300 और देंगे तो इसके पास भी 19,200 हो जाएगा। इसको भी गेन हुआ लैंड का, और इसके पास है ज्यादा, तो इससे तो हमें लैंड लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, हमें इससे लेना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इससे हम 1500 का लैंड ले लेंगे, ताकि इसके पास भी, तीनों के पास इक्वल आना चाहिए 19,200 मीटर स्क्वायर का। तो ग्रीन को भी गेन हुआ है, पिंक को भी गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ, लैंड और मिल गया, ब्लू को लॉस हुआ है। क्वेश्चन भी यही कहता है कि चाहे गेन हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, कितना एग्जैक्ट एरिया रीडिस्ट्रीब्यूशन में ऑप्शन में नहीं है। 1500 है, ये रहा, हमने माइनस करा, 300 है हमारे पास है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, 1200 भी है हमारे पास फर्स्ट का गेन, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, हमारे पास 900 मीटर स्क्वायर का ना गेन हुआ है ना लॉस हुआ है। सो दैट मीन्स आवर आंसर इज 900 मीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन से। फिगर ए बी सी are three rectangles of equal dimensions. Figure A and B contain some shapes placed inside them. Using these shapes, completely fill figure C without leaving any gaps. Which set of options can be used to exactly fill figure C? The shapes may be rotated but not overlap. The dimensions in the figure on the options are the same as the dimensions given in the question image. जो हमने इसमें इमेजेस में क्वेश्चन इमेज दी हुई हैं, डायमेंशंस वही यूज करनी है। तो ढूंढिए कौन सी फिटिंग हमारे में ये एग्जैक्ट फिट होगी। सोचिए सोचिए कौन सी फिट होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो डी फिट होने वाली है। अब डी को मैं आपको फिट करके दिखा देती हूँ कि डी कैसे फिट होगी। हमारे पास ये डायमेंशंस है, ये हमने फिट कर दिया, ये एल बनाया, ये एल फिट हो गया हमारा। एल की डायमेंशंस ये टोटल 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने ये फिट कर दिया। एल के साथ हमने यहीं पे एक रेड पोर्शन भी लगा दिया, ये हमारा रेड पोर्शन लग गया। इसको मैं रेड कलर से ही हाईलाइट कर देती हूँ, ये हमारा रेड कलर का हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक हमने रेड फिटिंग कर दी है, एक हमने ब्लू फिटिंग कर दी है। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद बचा पिंक शेप। पिंक शेप को कैसे लगाया जाए, सोचिए पिंक शेप को कैसे लगाया जाए, बताइए बताइए। पिंक शेप को हम ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे पिंक के साथ ग्रीन को लगाएंगे, यहाँ जब ग्रीन लग जाएगा, पिंक लग जाएगा, तो येलो वाला स्क्वायर अपने आप निकल कर आएगा एंड योर फिगर सी विल बी कंप्लीट। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, पूरी सीरीज कंप्लीट की जाएगी। वी आर नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।